Good morning, everyone. Am I audible to all? If I'm audible, please raise your thumb. Show me a thumbs up. Am I audible? Hello? Hello? Jeevan sir, am I audible? Sir, please show your thumb. I'm not able to hear you. Okay. Jeevan sir, I have unmuted you. Now I'll just check with Jaiswal sir whether he is available. Yes, he is there. I'll unmute him also. Jaiswal sir, are you there? Jaiswal sir? Yes, I'm hearing. Good It's morning. 10:26. Very good morning. It is 10:26. I think we have to wait for. Yes. I just wanted you to if you want to add some words. That's why I started now, so that by 10:30 we can start with the lecture. Okay. If you want to add some words, you can brief the class. जस्ट एक आप सुरेश जी आपसे है रजिस्ट्रेशन वाला था आप बाकी सबको अनम्यूट कर दीजिए मैं आपसे मैं बात कर ओके नहीं सभी अनम्यूट में है सर बट दे विल बी एबल टू हियर म्यूट कर दीजिए बाकी सबको म्यूट नहीं मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों का सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है सर वन सेकेंड सर बाकी सब म्यूट पे है बट दे विल बी एबल टू हियर यू ओके मैं ये कह रहा हूँ क्या संभव है कि रजिस्ट्रेशन वापस शुरू कर दिया कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है आपने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है वो लोग ज्वाइन तो कर लिया उन्होंने जूम आईडी से कैसे भी लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए ठीक है सर मैं पूछ के देख लेता हूँ बिकॉज कल मेरे पास बैडमिंटन का भी आया था ऐसे ही तो मैंने पता किया था तो वो बोले नहीं अभी तो क्लोज्ड है तो मैं एक बार ये बता दूंगा कि जूडो से भी कंसर्न आया मैं एक बार बात करके देख लेता हूँ हाँ ओके थैंक यू चलिए once again very good morning to all the participants on the fifth session of this online coach development program organized by SAI and Judo Federation of India. Welcome all of you. Thank you. Jeevan sir? Yeah. Sir, you can just, if you want to speak some words like briefing, you can do it for another 2 minutes. Then sharply at 10:30 we can start the session, sir. Okay. So good morning, everyone. Hope you are enjoying these sessions. I'm sorry because the shortage of time. Again, we have to finish today at 11:30. I will go a little quick and the question answer sessions we may miss. I will try, but main point I will try to explain and hope all goes well. And I need your cooperation, please. Just if you have any questions and all, you can send me privately. You can ask me privately also. So this is not the platform to reply all the questions. And if relevant question is there, no problem. I'm welcome. But only thing the time is short, so many participants are there. It's very difficult to answer all the questions. And yesterday I saw some persons were asking, some coaches were asking, and that from which book you have referred. See, one thing I would like to tell you, most of these slides I prepared with my own experience, and it's not like that. What I want to touch and I want to convey you what difficulty our coaches are facing in coaching judo, and what are the ground realities, and how we can overcome this. So this is my main focus on these sessions. I hope you will understand. And books and videos and everything we can refer at any time. Anybody can. But only how books are being written with experience, what we feel, and then we give them these things to work in, put in the words, and they write books and all like that. So this is mostly based on experience. And of course, I have referred some books, but I have studied in my career. That also, of course, points are there. So thank you very much.
So yes, sir. I think now it's time to start, sir. You can start your session, sir. Okay. 1 second, sir. I'll transfer the host. Okay. Yes, sir. You can see that? No, sir. No? Please share the screen, like as you did earlier. Yeah, now it's visible. Yeah, now make it full screen, sir. Okay. Yes, sir. So I'm going to start. Today's topic is very important topic. Both topics are very interesting and very practical. The weight loss practice in judo, especially I'm giving that reference of Indian judo coaches and players, how what we means we adopt and what are the drawbacks and what are the good things about weight loss and weight management. And second part is that the care of female judoka. First thing, you can see this in picture. We have one judoka lying on the mat, and other side, the second picture, you can see the medals. So main purpose of weight loss, why we are losing weight? To get fit into lighter category and to get medals. To win, because we think that we are making our weight in lower category, we can win easily, and ultimately aim is to win the medal. So how right it is, and how we are going to be benefited, or how we are going to lose a good judoka, that depends case to case. So this is the weight loss practice among Indian judoka. Common popular method used. I think all coaches know how what we are doing and what our judoka are doing. But I am still giving some examples and some points. एक judoka average reduce 4 kg weight. जो मैंने यहाँ रेफर किया है, जस्ट एवरेज की हमने देखा है कि मोस्टली जब भी आप किसी प्लेयर को पूछते हो वेट कम कर रहा है तो ये जवाब देता है और 4 kg कम कर लिया मैंने, 1 वीक में कर लिया मैंने, 3 डेज में 4 kg वेट कम कर लिया. तो like this answer you get from players. जब आप देखते हो जो करते हुए, तो they give like this kind of answer. क्या क्या यूज करते हैं? पिल्स यूज करते हैं जिससे कि आपका पेट साफ हो. फिर आपका ऐसी चीज यूज करते हैं जिसको ज्यादा यूरिन हो, डिहाइड्रेशन होती है. सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, कुछ ऐसा करते हैं जैसे उंगली से हम कुछ अपना वोमिट करने के लिए देसी मेथड की क्या और उससे वोमिट हो जाए आपको, जिससे आपका अंदर का जो भी आपने खाया है वेस्ट या वाटर है वो निकल जाए. और डाइट पिल्स, ये कॉमन मेथड्स हैं जो प्लेयर आपने देखा होगा कि जब भी हमारे प्लेयर बाहर जाते हैं कंपटीशन में जाते हैं तो मोस्टली ये चीजें आपको बिना बताए, कई बार कोच को पता होता है, कई बार नहीं भी. तो दे यूज दीस थिंग्स, वेरी थिंग्स आर वेरी कॉमन. They don't even understand कि some what they are taking, they are banned also, like diuretics and some other pills. आप टॉप में भी आ सकते हो. Then दूसरी चीज क्या है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम. लॉट ऑफ एरोबिक वर्कआउट करते हैं हम लोग, और नेगलेक्ट प्री कंपटीशन इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग. जो भी हमारी मेहनत है जो हमने प्री कंपटीशन पीरियड में हमें करनी चाहिए, हम उसको छोड़ के हमारा जो प्लेयर का फोकस है पूरा वेट के ऊपर हो जाता है. इवन समटाइम कोच गेट इरिटेटेड कि जो मतलब रियल उसने प्लान कर रखा है, लेकिन कोच या इधर वो प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसने ध्यान पहले नहीं दिया और लास्ट मोमेंट पे उसका वेट उसको कम करना कर रहा है वो, और उसको पूरा फोकस वेट के ऊपर लगाया और ही फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हाटएवर द कोचिंग मेथड्स जो हमने बताया या कितना सिस्टमैटिक ट्रेनिंग किया है, एवरीथिंग ही फॉरगेट्स, ओनली फोकस इज ऑन getting, or mostly they keep on running, treadmill, skipping, this, that, all mostly long workout करते हैं. इससे क्या होता है कि अपना जो मेन जो मेंटल प्रिपरेशन है वो टाइम में, या जो स्पेशल फोकस करना है अपने ट्रेनिंग के ऊपर, इंटेंसिव ट्रेनिंग के ऊपर, वो आपका रह जाता है और अल्टीमेटली वी लूज. देन ऑलमोस्ट फास्टिंग इवन restrict water and fluid intake. और कई तो प्लेयर ऐसे हैं कि कई दिन तक खाना नहीं खाते हैं और पानी पीना भी छोड़ देते हैं.
फ्लूइड इनटेक कुछ भी कोई ऐसी लिक्विड चीज है वो बोलेंगे नहीं ऐसे वेट बढ़ जाएगा मेरा। तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसे धारणाएं बना रखी हैं कि ये होने से पानी पीने से वेट बढ़ जाएगा या फिर मैंने फ्लूइड ले लिया तो वेट बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद सोना और स्टीम इस तरह के मेथड यूज करते हैं, मीन्स यूज करते हैं कि हाँ सोना में चले गए और वेट रिड्यूस किया। देन मैनी कोचेज पेरेंट्स एनकरेज इवन सब जूनियर जूडो का। तो आपने कॉमनली देखा होगा कि बहुत से कोचेज जस्ट एक तो मैंने पहले बताया कि ड्यू टू प्रेशर टू गिव रिजल्ट समटाइम्स विदाउट नोइंग एनीथिंग, वो इवन सब जूनियर बच्चों को जो बहुत छोटे बच्चे हैं फॉर देम आल्सो दे अलाउ देम टू रिड्यूस द वेट, जिनका मतलब बॉडी में है ही नहीं कुछ भी, ग्रोइंग एज है। इवन पेरेंट्स को भी ये लगता है कि जो पेरेंट्स है कि हमारा बच्चा इस वेट में खेलेगा तो मेडल जीत जाएगा, उनको भी पता नहीं है कि मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं उनके बच्चे की ग्रोथ के लिए और कोच को भी नहीं। देन एडजस्ट वेट टू बी इन टीम। कई बार प्लेयर्स इसलिए वेट एडजस्ट करते हैं कि उनको टीम में रहना है। उन्होंने देखा कि अपने वेट में कंपटीशन ज्यादा है लेकिन आप ऊपर वाली कैटेगरी में वेट कंपटीशन कम है या नीचे वाले में कम है और उस वेट में अच्छा प्लेयर खेल रहा है, आपको जीतने के चांसेस कम है, या टीम में आपको जगह नहीं मिल रही है, वो वेट खाली है, इस तरह से वेट को ऊपर या नीचे करके लिफ्ट करते हैं। वेट आउट ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, बहुत इंसिडेंट्स हमने देखा हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, हमारे नॉन प्लेयर्स भी वेट आउट हुए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, एशियन चैंपियनशिप में या ग्रैंड टीम में या और नेशनल चैंपियनशिप में, जहाँ पर जब वेट होता है अब वेट पूरा नहीं होता आपका और आपको बाहर निकाल दे, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। रिसेंटली वही हमारी सुशीला जो ओलंपिक के लिए अभी क्वालिफाई के लिए स्ट्रगल कर रही है, अभी शी मिस्ड दैट एक ग्रैंड प्री या ग्रैंड स्लैम और एक जगह उसका आउट मिस कर दी उसने, एक जगह ओवरवेट हो गई और शी मिस्ड टू इम्पोर्टेंट कंपटीशन जहां उसके पॉइंट बढ़ सकते थे, नहीं खेल पाया। फिर रियाल है लास्ट एशियन चैंपियनशिप में शी वाज वेट आउट। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, दिस टू एग्जांपल्स आर रिसेंट विद इन 2-3 इयर्स से, और ये तो लास्ट ईयर का ये मैंने बताया। तो इस तरह के अच्छे प्लेयर भी, सुशीला के केस में नो कोच वर विद हर, तो दैट आल्सो काउंट्स। प्लेइंग इन अ गुड कैटेगरी, मैंने बताया कि वेट एडजस्ट करने के लिए ऊपर वाली कैटेगरी में भी खेलते हैं, नॉट कि रिड्यूसिंग ओनली। प्ले इन अ गुड कैटेगरी टू बी इन द टीम, एंड उसका क्या होता है कि अल्टीमेट जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि आप हायर कैटेगरी में अच्छी कॉम्पिटिशन में खेल रहे हो तो मतलब ही नहीं है कि आप जीतोगे। एंड व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, जो मैंने पहले बताया वो कॉमन मेथड्स है जो हमारे इंडियन प्लेयर्स या वर्ल्ड में भी मोस्टली यही चलता है। एज पर स्टडी वेट लॉस मोर देन 0.9 kg, 900 ग्राम तक पर वीक रीजनेबली सेफ। लेकिन आई एम नॉट टेलिंग दिस एज ए ऑथेंटिक दिस, जस्ट आई एम गिविंग यू रेफरेंस। नेवर थिंक व्हाटएवर वी आर टेलिंग आप वही स्टिक करो, उस पर बिल्कुल आपने वो नहीं करना है। आपको केस प्लेयर टू प्लेयर डिफर करता है और क्या कंडीशन है, कैसे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, जस्ट गाइडलाइंस, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये नहीं कि जो मैंने बता दिया मेथड यही करना है वैसे करना है, ऐसा नहीं है। 5% रिलैक्सेशन रूल, सबको पता है कि कंपटीशन में पहले जैसा नहीं है अभी कि सेम डे वेट और सेम डे आपको खेलना है। अभी एक दिन पहले शाम का आपका वेट हो जाता है और नेक्स्ट डे आपका वेट 5%, आपके बॉडी वेट आपका 5% से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। दिस इज द रूल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर बच्चे को, हर प्लेयर को मालूम होना चाहिए कि 5% हर कैटेगरी का कितना है। इट्स नॉट अ बिग इशू, एवरीबॉडी कैन मेक इट आउट। और आईजीएफ ने जो भी है कुछ अच्छे साइंटिस्ट से या कुछ रिसर्च के ऊपर ही ये रखा हुआ कि 5% से ज्यादा वेट अगर अलाउ करना है तो इसका मतलब कि वो जुडो के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो कीप इन माइंड कि अगर जब भी आप टीम के साथ जाते हो या कहीं पर ट्रायल में कुछ भी हो तो ये रूल का ध्यान रखना है। तो केयरलेस जुडो का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम आई टोल्ड कि कोच और सम पेरेंट्स आर रिस्पांसिबल, बट मोस्टली सम प्लेयर्स आर वेरी कैजुअल, दे लीव कि लास्ट मोमेंट तक रोक के रखेंगे। आज पूछते रहो उनको, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप अगर पर्सनली चेक नहीं कर रहे हो उनका वेट तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको जुडो आप इससे विश्वास कर रहे हो और ही और शी टेलिंग यू लाइव, वो बोल रहा है ठीक है और आप विश्वास कर रहे हो। जब कॉम्पिटिशन होने लगा तो वो वेट ओवरवेट हो जाता है और उसका वेट ऊपर रहेगा, या तो लास्ट मोमेंट के लिए फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन देन यू फॉरगेट रिजल्ट्स। यू कैन मेक दैट वेट बट यू कैन नॉट। Now next, the red dye put that rapid weight loss used by judoka will lead to decrease in performance. Some examples I have given that what very practically I have gone through. Like Rima, we had trials
in IG Stadium after court decision, एक लड़की के साथ हसना वाला के साथ ट्रायल था. Same day when we went to for court direction for the trial, तो उसका weight suddenly just trial से पहले 1.5 kg or something एकदम it's so much problem. Anyhow, we managed. She played and she lost. What? वो टाइम में सिचुएशन ऐसी थी कि 5% relaxation जो rule था, we didn't apply, and all players were sitting next same night and next team were traveling to Asian Championship. Had I forced on that 5% relaxation rule before that, तो कोई जरूरत नहीं थी उसको 1.5 kg कम करने के लिए. She could have played without reducing weight and could have won. So such indifference. Then Tawabi had that before Olympic, she's the only girl who won Youth Olympic medal in that Barcelona, that Argentina. So उसका same case था. She got injury and suddenly International Olympic Committee से IJF से message आता है कि you have two girls in that category, Tawabi and Rohini. So she was in 40 kg, she was in 44 kg. So आपको you have to decide which category you have to send. This was a big problem. She had injury and she was 2 kg up, and they told this date you have to conduct. We have within 2 days you have to finalize that list. So we took her, Tawabi, to Pune, and I consulted with that our now late Mr. Bangera, who is no more with us. And I discussed with him, this is the problem, and it's very difficult for a young girl to reduce 2.5 kg or 2 kg weight in one day. And there is rule 5%. If you are having trial on same day, then you give her 5% relaxation. And he agreed. And we had trial, Tawabi won, and then the rest is the history. She's the only girl who won the Olympic medal. Then I think Mr. Kanojia is there now. He must be attending that last Asian Championship. Just before going out, I was there in Taipei, not as Indian team coach, but I was there. And I saw that Ishan, our Khelo India boy, he was coming out of being trial weight, and his weight was about 1 kg or something, or 800 grams was up. And weight was about to start. There is a rule in judo कि once you are अपने weighing machine पे चले गए हो, तो आप no second chance. अगर आप overweight हो तो you will be out. Then it was very surprising. Then his father was with him. And I took him to gym and we tried something. And I'm not going to mention what we did, but I'm going to say it. Everybody will start following that, and if this is the method, this is not the method. Sometimes you have to, in emergency, you have to do something. So it's not fixed किया ये किया तो वही करना चाहिए. Or don't ask me वो क्या है. I can tell you personally. So anyhow, we did 10 minutes workout, and anyhow he made the weight and he participated. What same thing he lost. Not lost due to but he had very good fitness and he could manage that. How to करना है, लेकिन that opponent was very strong. Then we had this girl, very famous judo player, Indian, Aruna. Yeah, she was from Haryana, and always she had problem. जब भी वो participate करती थी, जब भी हमने competition में जाना, चाहे वियतनाम हो, एशियन चैंपियनशिप जो always she जाता. She was so careless कि ठीक रहेगी और रात को चॉकलेट ये वो सब खाएगी. जब वेइंग होने लगेगा तो फिर वही you have to do so many things to bring her in her category, or next day she was doing it. Then we had one Kamla case, I think Ishpal remember that, and many who were there, that Najib or Sanit Bhai also there, I think, in Prague in 1996. We reached late and they changed their weight category. जो heavyweight से शुरू होना था, lightweight से शुरू होना था, और Kamla was out and Najib Narendra was out. Anyhow, Narendra and Najib had very professional approach, and Kamla, being a girl, she was not confident. And whole night we were trying, myself and Yashpal, especially both, and Najib was helping us to bring the water, this and that. Anyhow, we managed that. Or she made but she lost very badly. So these are some cases I'm telling you. You must have experienced so many things, cases in your coaching career. Next, there are cases of death while trying to reduce weight. कई केसेस ऐसे आए हैं जहां वेट रिड्यूस करते हुए सोनाबाद में या ओवर डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो गई है. तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप ये मीट्स यूज करते हो इमरजेंसी में, तो आपका प्रेजेंस वहां होना, एक एथलीट की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. डोंट लीव योर एथलीट अलोन व्हेन यू आर रिड्यूसिंग वेट. एनीथिंग कैन हैपन. बी केयरफुल.
और दूसरा वेट लॉस बाय चिल्ड्रन कैन रिजल्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन नॉर्मल पैटर्न। कोई बच्चों का जो हम फोर्स करते हैं वेट, जैसे ऑलरेडी 34 kg और 30 kg, उसका 7-8 साल या 10 साल एज है, कि क्या वेट कम करेगा? आपको 1 kg क्या अगर 100 ग्राम भी कम करने के लिए बोलोगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आई हैव सीन मैनी कोचेस और मैनी प्लेयर्स प्रोड्यूसिंग वेट, उनको पता नहीं होता है। बी केयरफुल, ये बहुत ही डेंजरस है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो बी केयरफुल, नेवर tell that children to reduce weight, never encourage them, और all using these things, जो भी पिल्स वगैरह यूज करते हैं हम, उसमें डॉग का खतरा है और हेल्थ का खतरा है, तो बी केयरफुल। अब रिकमेंडेशन क्या है? सबसे पहले अब आप पूछो मेथड्स क्या होता है, कैसे रिड्यूस करना। मोस्टली कोचेज का क्वेश्चन या प्लेयर का, सर बताइए वेट कैसे रिड्यूस करना है, हाउ टू रिड्यूस, क्या करना है, इतना कम कर रहा मैं क्या करूं, क्या खाऊं। तो बी ए वेरी प्रोफेशनल इन दिस। Never recommend anything until you don't know anything. अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको बताना नहीं है कि हाँ मेरे को ये कर लो, इतनी रनिंग कर लो, ये कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, बट नीड फॉर द ग्रेटर एजुकेशन ऑफ जुडो का कोचिंग, जुडो का एंड पेरेंट्स। आपको उनको एजुकेट करना है कि इसका क्या हार्म हो सकता है, क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, कितना कम करना है, कितना है। दैट इज द बेस्ट वे। जब प्लेयर को समझ आ जाएगा, कोच को समझ आ जाएगा, पेरेंट्स को समझ आ जाएगा, सबको समझ आ जाएगा, then you can do something. The promotion of sound nutrition in order to facilitate normal health growth and to elicit peak performance. अब इसके लिए आपको हमेशा न्यूट्रिशन का, और आपके जो डॉक्टर्स हैं या फिजियोलॉजी बड़े हैं या जो भी साइंटिफिक सपोर्ट है, उनकी गाइडेंस पहले जरूर लेनी है कि अगर ये इतना वेट कम करेगा, यू कंसल्ट विद देम, वो आपको कितना रिकमेंड करते हैं। नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर आप एक अच्छा कोच बनना है, आपको प्लेयर को लॉन्ग चलाना है और अच्छे तरह से उसको ग्रो करना है, तो आपको ये चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। डोंट डू दैट, अपने जो हम बोलते हैं कि अपने जो जैसे फार्मूले हैं उन पे नहीं चलना है। स्टॉप कंपल्सरी ट्रायल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर कंट्री। और ये मैं आई जस्ट रिक्वेस्ट मिस्टर जायसवाल इज देयर एंड सो मेनी स्टेट ऑफिशियल्स, आई थिंक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और ऑफिस बेयरर्स आर देयर, कि हमारे कंट्री में दैट आई एम फेसिंग एंड आई थिंक ऑल कोचेज और एकेडमी कोचेज आर फेसिंग, कि जब भी कोई बार बार ट्रायल्स, बार बार कंपटीशन, इसमें क्या होता है कि एक बच्चा अगर इंडिया नंबर 1 है, उसको क्यों बार बार आप ट्रायल के लिए बुलाते हो? आज आपका डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो गया, आपने उसको, आपको स्टेट का पता नहीं है, 15 दिन के बाद, 1 महीने का, फिर आप उस प्लेयर को बुलाओगे, आज आप स्टेट के लिए आ जाओ। उसके बाद आपका कोई आएगा नेशनल कोई हो रहा है, उसके लिए आप ट्रायल के लिए आ जाओ। आपको विद इन स्पैन ऑफ फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स कितनी बार वेट कम करना पड़ता है। इसलिए जो रैंकिंग है वो बहुत जरूरी है। अगर आपने प्लेयर की रैंकिंग कर दी तो आपको छोटे टूर्ना, क्योंकि आपका जो एम है, आपने जो टारगेट किया है ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप, वो पूरा खत्म हो जाता है। एक प्लेयर तो पूरा बर्नआउट जर्नी में और बार बार वेट कम करने में हो जाता है। मेरी कईयों से डिफरेंस इसी पॉइंट पे हो जाता है कि आप क्यों एक बच्चे को, एक बच्चा ओलंपिक खेलने जा रहा है या वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा है या ग्रैंड प्री खेलने जा रहा है, आप उसको बोल रहे नहीं आपको डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में जरूर आना है, आपको स्टेट में नहीं खेलोगे तो आप नेशनल नहीं खेल पाओगे, आपको ये ट्रायल नहीं। तो ये हमारी स्टेट एसोसिएशंस और हमारे फेडरेशन की ही दायरे में है कि वो उनको एक रूल ऐसा बनाए कि जिससे कि बच्चे को, जो अच्छे हमारे एलीट प्लेयर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एलीट प्लेयर जो ऑलरेडी इंडिया नंबर 1 है और कई काफी दिनों से मतलब नंबर 1 या नंबर 2 चल रहे हैं, उनके लिए हमारा स्पेशल रिलैक्सेशन होना चाहिए कि दे शुड ओनली गिव जो रैंकिंग है, या फिर जब उनको बहुत जरूरी है ट्रायल देना। इसके पीछे ये रीजन है कि अगर हम यहीं पर उसको वेट कराएंगे, ट्रायल में वो पीक कर जाएगा तो मेन कंपटीशन में जाके तो वही आएगा बाद में, हाँ जी यहाँ तो बड़ा अच्छा खेलता है, वहां जाके क्या हो जाता है, हमारा मोस्टली इंडियन टीम्स का ये होता है, अरे यहाँ पर बड़ा दिखाते हैं वहाँ क्या हो जाता है। तो ये कारण रहता है कि हम उसको कितनी जल्दी, कितनी बार उसको वेट कम करवा चुके हैं बार बार, और उसको ना हमारे ऑफिशियल्स को पता चलता है ना हमारे कोचेज को, दे डोंट थिंक अबाउट प्लेयर। तो स्टॉप दिस प्रैक्टिस। अगर ये चीज हम कर लेते हैं तो हम कई प्लेयरों को बचा सकते हैं। देन आपको पहले बताया कि आपके जो संडे स्पोर्ट टीम है उनसे जरूर आपने गाइडेंस लेनी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जितना मैंने बताया ये जो भी है, जो मेन प्रैक्टिस है, जो मैं एक देख रहा था, एक रिसर्च देख रहा था, उसमें ये देखा उन्होंने कि ये जो प्रैक्टिस है आप कितनी भी कोशिश कर लो वर्ल्ड वाइड खत्म होने वाली नहीं है। वेट लोग कम करते ही रहेंगे, एडजस्टमेंट करते ही रहेंगे, वो खत्म नहीं होगी कि आप बोलोगे नहीं जो बता दिया था ऐसे होना है। तो
दिस इज द ट्रुथ। लेकिन अगर आप, मैंने पहले बताया, आपको अपनी जोड़ों का की केयर है, उसको कुछ लेवल तक लेके जाना है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप बच्चों के हेल्थ के बारे में और कंट्री के फ्यूचर के बारे में अच्छे जोड़ों को खराब नहीं करना है। बी केयरफुल। नाउ कम्स सेकंड सेशन। This is very interesting subject and हमारे कुछ फीमेल कोचेज रहे हैं, उन्होंने मेरे को पर्सनली भी अप्रोच किया, बोला कि आप इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान दो कि बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये। रियली एवरीबॉडी वी नो कि ट्रेनिंग है जोड़ो गर्ल्स और बीइंग ए फीमेल कोच एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम है आज के माहौल में जैसे भी चल रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू adjust and you can understand what I meant to say कि एक लड़कियों को ट्रेनिंग करना आज के माहौल में जिस तरह चल रहा है थोड़ा चैलेंजिंग जॉब हो गया है। सो यू हैव टू टेक केयर। क्योंकि केयर करना है, आप देखिए, आप ये स्लाइड में देखिए, इसके नीचे जो हेडिंग थी उसमें कोच के बारे में लिखा हुआ था, कोच से हमें बचाइए। अब अगर ये चीज रहेगी तो very difficult to attract girls in judo or in any sports. So we are ashamed to say our girls parents और जो हमारा जो भी है, जो बच्चे जिनके बच्चे लड़कियां स्पोर्ट्स करना चाहती हैं, अगर ऐसे देखें तो वो कभी भी स्पोर्ट्स में नहीं भेजेंगे। See, this is the one news. Other reason I'm telling कि ओलंपिक 2012 के जापानीज कोच थे, जो हेड कोच थे वहां के, जो नेशनल कोच थे, उन्होंने स्लैप्ड, किक्ड एंड बीटन वुमेन विद बैम्बू। और ये प्रैक्टिस बहुत जगह पे चलती है, नॉट ओनली इन जापान, नॉर्थ कोरिया। आई हैव सीन पर्सनली इन दोहा एशियन गेम्स के टाइम में कि ड्यूरिंग वार्म अप द कोच वर बीटिंग द गर्ल्स एंड गर्ल्स वर क्राइंग बिहाइंड कर्टन, और जैसे बुला रहे थे अगेन रेडी होके लिटरली क्राइंग। और ऐसे हमने भी अपने इंडिया में, आपने भी देखा होगा कहीं ने, ये जो हमारा पुराना एक स्टाइल है हाथ उठाने का या गाली गलौज करने का या कुछ भी, देखना नहीं कि आप लड़कों को ट्रेनिंग करा रहे हो, लड़कियों को करा रहे हो, वेरी फाउल लैंग्वेज, यू बीट देम। तो कुछ बच्चे तो टॉलरेट कर लेते हैं, वहाँ का जो सोशल दायरा है, वहाँ का जो रिवाज है, वहाँ चल जाता है। लेकिन आज के माहौल में इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू कैन नॉट प्रोड्यूस ए गुड जूडो प्लेयर बाय बीटिंग और समथिंग। अगेन स्कूल वगैरह में पहले बिल्कुल टाइम में मारते थे, ये बोलते मारते हैं ये, लेकिन अब अभी वो पूरा चेंज हो गया एंड वी हैव टू चेंज। अब क्या प्रॉब्लम है कि एक कोच और फीमेल जुडोको में क्या प्रॉब्लम्स आती है। ह्यूज गैप बिटवीन कोच एंड फीमेल जुडोका। देयर इज वेरी लिटिल टू वे कम्युनिकेशन। जुडोका जब डू एज दे आर टोल्ड इफ देयर इज ए प्रॉब्लम दे कांट चैलेंज कोच। मतलब जो कोच है, चाहे नेशनल एकेडमी है या नेशनल कैंप है या आपका सेंटर है, कि वन वे है। मैं कल भी बताया था कि आपका अपना जो है उसकी डिफरेंट बात है, लेकिन जब आप बाहर के बच्चों को ट्रेन कर रहे हो और आपको एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट मिल गई है तो आप डिक्टेटर बन जाते हो। आप वन वे कनेक्शन रहता है कि जो आप बोलोगे वही फॉलो करना है प्लेयर को, या खास करके लड़के तो फिर भी कई बार बोल लेते हैं, लड़कियों को बोलने की छूट नहीं दी जाती। अगर वो बोल दिया तो कुछ भी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। जुडो कोच नीड टू चेंज योर मेथड एज पर, मतलब टाइम के हिसाब से आपको चेंज होना है। आप नहीं रह सकते। आज के बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, बहुत उनको एक्सपोजर है, सोशल मीडिया है, इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हर चीज उनको पता है, तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर ये सब चीजें होती रहेंगी तो नंबर ऑफ फीमेल जोड़ों का रिड्यूसिंग। आप देखिए, एक टाइम था कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में लड़कियां होती थी कि पूरे नेशनल चैंपियनशिप में इतनी लड़कियां होती थी कि 400-500 स्टेट चैंपियनशिप में 400-500 गर्ल्स वर पार्टिसिपेटिंग। और अभी ये है कि आपको स्टेट में क्या, अगर नेशनल में भी उतना पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। और दीज आर द रीजंस कि जो हमने पहले बताए हैं कि हम उनको हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। एक उनको विश्वास उनके पेरेंट्स को या उनके दिल में एक सिक्योरिटी का जो होना चाहिए दिमाग में कि हाँ हम सिक्योर हैं, वो भावना ही नहीं आ रही है उनके दिल में। वो कर ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हैं। और सबको पता है कि हमारे जो रिजल्ट्स रहे हैं आज तक लड़कियों के बेटर रहे हैं।
लड़कों के अच्छे रहे हैं क्योंकि लड़कियों में थोड़ा कंपटीशन लड़कों से कम है, और दूसरा कारण ये कि लड़कियां मैंने लिखा है बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग। आप उनको जो बोलोगे वो करेंगे, आपसे कभी आउट ऑफ वो नहीं। अगर वो आप ठीक हो और लड़कियां अच्छी हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। आप कभी भी वो नहीं करोगे ये बहुत रेयर कोई 1 या 2% लड़कियां ऐसी होंगी जो नहीं करना चाहेंगी। उनको उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है आपस में। पहले आपको पता है हमारी इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां रही, अनीता वगैरह, ये जितनी बहुत मतलब सिंसियर लड़कियां रही हैं। स्टिल आई गिव एग्जांपल ऑफ ऑल माय जूडो कैंपर्स और जितने हमारे बच्चे रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मेल कोच और फीमेल कोच का, कि मेल कोच होना चाहिए या फीमेल कोच। अब इनकी केयर करने के लिए हमें इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब नॉर्मली तो क्या देखा जाता है कि अपोजिट सेक्स के जो कोच होते हैं नॉर्मली सभी लाइक करते हैं, वैसे आप ज्यादा फ्री हो सकते हो, फ्रीडम हो सकते हो, और आपको थोड़ा कंपैरिजन हो जाता है। लेकिन उसके थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैं चलो आगे एक्सप्लेन करता हूँ उसका, शायद आगे स्लाइड में है। अब ड्यूरिंग ट्रेनिंग है बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोच है या प्लेयर है, दीज आर द कॉमन थिंग्स जो हमारे ड्यूरिंग ट्रेनिंग में हैपन। और आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कंबाइंड ट्रेनिंग चलती है, कैंप चल रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार एक्सीडेंट टच, जैसे आप नेवाजा कर रहे हैं, होल्ड लगा रहे हैं, कि आप हमारी गेम ऐसी है और कोई स्पोर्ट्स ऐसी नहीं है जिसमें आपको ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हमें ही करना पड़ता है, ज्यादा कोई चीज को ज्यादा दिखाना पड़ता है। समटाइम यू डोंट हैव ऑप्शन, आपसे कोई लड़की पूछ रही है तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, लेकिन आपके अगर दिल में कोई फीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब जूडो के अलावा कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर बात वही आ गई कि अगर आपका विश्वास, जैसे ये लिखा है कि अगर वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसने जूडो किया हुआ है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो जस्ट इग्नोर और आप फॉलो करेंगे, ओके गो अहेड। लेकिन अगर कोई नया बच्चा है, अभी अब उसने ज्वाइन किया आपके पास आके, और आप कुछ ऐसे लगता है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। वो लड़की को वो चीज अच्छी नहीं लगी, उसको अदरवाइज ले गई, या कुछ हो सकता है कि वो डेलिब्रेट एक्शन भी होता है, तो मालूम हो जाता है वो लड़की है, उसको मालूम है यार, आपको भी पता है कि क्यों अनकंफर्टेबल है वो। अगर अनकंफर्टेबल है, आपको पता हो जाएगा कि आप हेजिटेट कर रहे हैं, तो जस्ट ट्राई टू हैंडल दैट सिचुएशन कि आपको कैसे हैंडल करना है। आपको नो नीड टू गिव डेमोन्स्ट्रेशन विद दैट टिल उसका विश्वास नहीं पड़ता है इसको। लेट इट डेवलप, थोड़ा टाइम पास होने दो, जब आपका एक टेम्पो बन जाएगा, आपका एक इमेज बन जाएगी, तो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम विल बी देयर। लेकिन हम लोग फोर्स करते हैं, उसको गाली निकालेंगे या करेंगे, कई बार सेम थिंग हैपेंस विद प्रैक्टिस पार्टनर, मेल एंड फीमेल कर रहे हैं, सेम थिंग हैपेंस लाइक दिस। लेकिन अगर वो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ जूडो के सिवा दिमाग में कुछ नहीं है, तो नथिंग हैपेंस। और अगर आपको प्लेयर कंप्लेंट करता है, कुछ करता है कि नहीं मेरे को ऐसा है, इसके साथ प्रैक्टिस नहीं करना है, तो यू हैव टू गिव अटेंशन टू दैट। नहीं, उसको ये नहीं कि इग्नोर कर देना है। समटाइम कुछ रियलिटी भी हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना भी कोच, आपको बहुत सीरियस इस मैटर को लेना है, नॉट ए स्मॉल मैटर। क्योंकि एक बैड न्यूज, एक धब्बा आपके पूरे कैरियर पर कलंक लग सकता है और किसी का करियर खराब कर सकता है, और जूडो का नाम बहुत बदनाम हो सकता है। No, it comes a comparison or female or male coach for female judo का, it's very difficult, बहुत ही मुश्किल है ये बताना कि कौन सा कोच है, क्योंकि एक नंबर ऑफ कोच हमारे पास जो फीमेल कोच है बहुत कम है इंडिया में, एवरीबॉडी नोज। दूसरा क्या है कि क्यों होना चाहिए और क्या उनका रोल है। जैसे मैं पॉइंट बाय पॉइंट जा रहा हूँ। जो फीमेल कोच है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपके साथ एक फीमेल कोच है। अगेन अभी पूरा जो फोकस है गवर्नमेंट का, पूरा खेलो इंडिया अकेडमी, नेशनल अकेडमी, प्राइवेट जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, वहाँ के जो है वहाँ पर कंबाइंड ट्रेनिंग चल रही है। और आपके पास फीमेल कोच है तो कुछ चीज को बहुत रिलैक्सेशन रहती है करने के लिए। आपको कोई ऐसा मतलब डर नहीं है कि थोड़ा फियर कम हो जाता है कि कुछ ऐसी बात होगी तो भाई लेडी कोचेज है, हमको देख रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ कंप्लेंट भी होती है तो। एंड आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू दैट माय वाइफ इज जूडो कोच, तो हमने शुरू से जब इकट्ठे रहे हैं तो जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है उतना लेडी कोच का है, क्योंकि उन्होंने, उनकी वजह से मैं बहुत सिक्योर फील करता था, बच्चे सिक्योर फील करते थे, तो मेरे को ये नहीं लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो बच्चों के दिमाग में कुछ आ जाएगा। एंड with the grace of God and all, I got
मैक्सिमम रिस्पेक्ट फॉर माय फीमेल एथलीट्स जो भी आज तक रहे हैं, जितने ओलंपिक लेवल तक गए हैं, जो भी मेडल लिफ्ट रहे हैं, जितने भी मेरे पास टीम में रहे हैं, सो आई नेवर गॉट सच काइंड ऑफ फीलिंग कुछ ऐसा हुआ है या आगे हो सकता है। तो फीमेल कोच का होना आपके साथ नॉट ओनली की ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए मेल कोच। पहले मैंने बताया कि नेशनल कैंप वगैरह। देन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? फिजिकल फिटनेस में। कुछ सर्टेन एज के बाद क्या होता है कि लेडी कोचेस की मैरिज हो जाती है, और क्या बोलते हैं वो थोड़ा फिजिकली और घर की जिम्मेवारियां और की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और कुछ केयरलेसनेस भी, फिजिकल फिटनेस थोड़ी कम हो जाती है। प्लेइंग कैरियर अगर उनका आपका अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो आपको प्लेयर इतने जो लेडी प्लेयर्स हैं, मैं फीमेल जूडो का इतनी आपको इतना ज्यादा आपको विश्वास नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है, जो जनरल आदत है लेडीज की, दे एक्सप्लेन टू मच, ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं कई बार। एक बच्चे को पकड़ लिया तो उसको बस पूरा इतनी एडवाइस कर देंगे कि उसको पता ही चलेगा कि मैं ट्रेनिंग करूँ या इनकी एडवाइस सुनूं। तो थोड़ा सा हमारी लेडीज कोचिज को थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना है, एक फिटनेस के ऊपर और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। यार ये ना समझे कि क्या बोलते हैं, हाँ अभी हमारी एज हो गई है या हम कुछ कर नहीं पाते हैं। देयर जूडो में इतनी वैरायटी है, अगर आप स्टैंडिंग टेक्निक नहीं कर सकते तो फॉर नेवर टेक्निक्स, नेवर मोर कंफर्टेबल। लड़कियों के लिए भी कोई ज्यादा वो भी नहीं है, आप नेवर करोगे आप यू कैन improve your skills and same time आपका अटैचमेंट भी रहोगे, फिटनेस भी बनी रहेगी, तो इसमें कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहेगा। और मेल कोचेज का ये है कि दे शुड गिव लिटिल फ्री हैंड मेल फ्री फीमेल कोचेज आल्सो। ओके, ये क्लास है स्पेशली सिर्फ फीमेल कोचेज ही लेंगे लाइक दैट। तो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली संदीप हमारे हॉकी के जो लीजेंड रहे हैं, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कर दिया कि सिर्फ फीमेल कोच को प्लेयर को फीमेल कोच ही वो करेंगे। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि क्या ये रियलिटी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्यों हुआ ये, क्योंकि इतने केसेज ऐसे हो रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट और कई कारण, जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा। तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू थिंक ओवर इट कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब देखिए लेवल ऑफ वेलनेस इन द मेल एंड फीमेल कोच इज डिफरेंट। तो ये पहले आपको मैंने ऊपर बता दिया फिटनेस एंड वगैरह। और दूसरा है कि चाहे ये मेल हो, नीचे लिखा मैंने एज 50 और मोर, लो लेवल फिजिकल ट्रेनिंग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस एज के बाद हमारा जो फिजिकल ट्रेनिंग का जो लेवल है कम हो जाता है। ओल्डर पीपल वैल्यू लेस इन डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस। जैसे जब एज बढ़ती है ना, तो हम कोई चीज बताते हैं कि ऐसे करना है तो नहीं मानते, यार ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सिंपल है कि हम किसी को डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, वहां तक ये देखो, वहां से जुड़ो बढ़ रहे वहां ये होता है, देखो स्टैटिस्टिक्स देखो, ये देखो, वो नहीं मानेंगे, बोले नहीं हो तो घी की दंड बैठकला। मतलब एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे आप एज बढ़ती है तो आप अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा बात करते हो बजाय कि डॉक्यूमेंटेशन। तो दिस टेंडेंसी टू चेंज कि जहां रियलिटी है, जो फैक्ट है, उसे एक्सेप्ट करना है। नो आई थिंक टू फास्ट। ओके, अब आ जाता है ये मेन प्रॉब्लम लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि हमें उनका जो मैंने बताया कि जो डिफरेंसेस हैं एक मेल में और फीमेल में, दैट वी मस्ट नो। उनकी जो एक लिमिटेशंस हैं कई जगह पर, वो एक कोच को मालूम होना चाहिए। जो क्वालिफाइड कोचेज हैं उनको सब पता है, और प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस की हमारे जो बच्चे हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और कई बार आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई बच्चा, खास करके लड़कियां, एकदम डर से आपको लगेगी, कुछ आपको बताएंगी भी कुछ नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या, और आपके दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा है कि चीज डूइंग ट्रेनिंग बट अपने आप में नहीं है। तो जस्ट विद एक्सपीरियंस एंड विद योर स्टडीज एंड ऑल यू कैन मेक आउट की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो फीमेल कोच का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आजकल के बच्चे थोड़े काफी पढ़े लिखे हैं, दे कम टू यू एंड दे टेल आई हैव सम प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम एंड दिस दैट आई कैन डू। बट जब ये शुरू होता है और फर्स्ट टाइम कोई एक्सपीरियंस करे बच्चा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या उसकी प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल जो वो टाइम में ट्रीटमेंट है, जो आपके साइकोलॉजिकली जब कन्विंस करना है, तो उस टाइम में आप साइकोलॉजी की हेल्प, पेरेंट्स की हेल्प
या लेडी कोच की हेल्प, कि जो चीज नेचुरल है वो कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकती है। मोस्टली हमारे हो जाता है कि मोस्टली आई हैव नॉट सीन टॉप क्लास प्लेयर्स इन इंडिया, कभी मेरे को कंप्लेंट करने की उन्होंने क्यों एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे बढ़ जाता है कि बस अगर हमने इस टाइम में अगर ट्रेनिंग की तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी परफॉर्म कर में, और अब हम नहीं करेंगे तो दे वेस्ट लॉट ऑफ टाइम कि बाहर बैठ के, तो आपको भी नहीं अच्छा लगता कि वो मना करो पेन है और आप उसको बोल रहे नहीं ट्रेनिंग करो। तो ये चीजें हमें एजुकेट करना है कि वर्ल्ड में कहीं भी ऐसे कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है कि आपके डेट्स को देख के वो कंडक्ट करेंगे, ये कभी भी डेट्स कंपटीशन की कोई भी हो सकती है। तो अगर आप ट्रेनिंग टाइम में उनको बच्चों को हैबिट डालोगे तभी वो वहां परफॉर्म कर सकें कि दिस इज नेचुरल प्रोसेस। कुछ केसेस होते हैं ऐसे जहां पर थोड़ा आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन नॉर्मली उनके दिमाग में यही डालना है कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें ट्रेनिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें आप बिल्कुल जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो अगर ये दिमाग में उनके बैठ गई तो आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई साइकोलॉजिकली को दे रहे हैं कि हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और उसको आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कितने ओलंपिक चैंपियन आप अगर एक डाटा निकालोगे तो ड्यूरिंग द पीरियड्स दे हैव वन गोल्ड मेडल, इवन स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग में और जूडो में भी। अब आई नो नीड टू टेल कि काफी हमारे लेडी कोचेज अभी बैठे हुए यहाँ पर, एक प्लेयर भी हैं तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि दे कैन सी दैट क्या उनको क्या प्रॉब्लम होती थी, एक साइकोलॉजी को छोड़ के, और कुछ केस सर्टेन केसेज में कि कुछ ज्यादा पेनफुल रहता होगा, अदरवाइज कोई परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस पे तभी फर्क पड़ेगा जब आप उसको साइकोलॉजिकली ज्यादा समझोगे कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स नेचुरल प्रोसेस। आप समझने वाली बात यह है कि हमारे कुछ, ये मेरे को स्लाइड हमारी किसी कुछ नहीं बोला था, तो ये एज ग्रुप है जब हमारे पीरियड जो लड़कियों के शुरू होते हैं, जब आप देख सकते हैं स्लाइड में कि जो puberty 8 to 12 years of age, उसके बाद 10 to 14 years of age, देन इस एज में जो पीरियड से शुरू हो जाते हैं, उसके बाद within 6 months of मतलब जस्ट स्टार्ट देन या वो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस थिंग कि इस एज से शुरू होने के बाद आपको इस एज का मतलब लिखने का ये मतलब है, विद्या चार्ट का दिखाने का कि आपको समय कि इस एज में आपको जो बच्चा है के पीरियड्स शुरू हो रहे हैं और आपको केयर करनी है थोड़ा सा, और उसको साइकोलॉजिकली तैयार करना है। और पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स की बैक अच्छे पढ़े लिखे हैं वो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे गाइड प्रॉपरली। कुछ जो गांव से हैं या बैकवर्ड एरिया से, मणिपुर से हैं, ऐसे जहाँ मतलब इतनी एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए अगर आपके पास एकेडमीज में, तो आपके पास डॉक्टर हैं, डाइटिशियंस हैं, लेडी कोचेज है, दे कैन गाइड देम कि क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत जरूरी है चीजें समझने के लिए। इसके बाद ये जो मेन आई वांट टू फोकस ये है कि इसमें क्या होता है। अब देखिए जो मैंने पहले दिखाया आपको वेट लॉस के टाइम में कि वेट बच्चे रिड्यूस करते हैं, डाइट बंद कर देते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं, उसके बाद ये जो इरेगुलर पीरियड्स हैं ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और आई हैव एक्सपीरियंस नंबर ऑफ प्लेयर्स इन माय करियर, स्पेशली इन पटियाला, यंग लड़कियां, और दे वर जस्ट क्राइंग। उसमें अभी कुछ हैं भी इस ग्रुप में, आई डोंट वांट नेम देम, तो उनको इतनी प्रॉब्लम होती थी जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होना, और वो टाइम में कई बार हमें भी नहीं पता चलता है कि क्यों हो रहा है। हम इसको समझ लेते हैं कि शायद ये कोई इनकी इंटरनल प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, इस वजह से इनको हो रहा है। लेकिन उसके पीछे रीजन है। अभी जो जैसे आई एम वर्किंग हियर, यहाँ के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनसे बात करते हैं क्या, तो वो ये बताते हैं कि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे हमारे यहाँ सपोज किसी का पीरियड 2 महीने या 3 महीने नहीं आया, तो अगर हम अपने डॉक्टर से पूछे बोलेंगे इसे नॉर्मल है, हमारे इंडियन स्पोर्ट्स वाले लड़कियों के लिए बहुत नॉर्मल है, और हम उसको छोड़ देते हैं कि नॉर्मल है, ये सबको होता है स्पोर्ट्स में। लेकिन बोलते इट्स नॉट देयर इन आवर कंट्री, नॉट नेवर हैपेंस। और वो कंट्रीज के वाले दे आर विनिंग ओलंपिक मेडल्स एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारी कंट्री में तो
ये नहीं होता है। हाँ, इंडिया में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हमारे रिजल्ट नहीं आते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है। हम समझते हैं कि इससे नॉर्मल प्रोसेस। अब ये क्यों रेगुलर होते हैं पीरियड, उसमें मेन कारण है कि आपका जो वेट रिडक्शन है और जो आपके जो ट्रेनिंग है उस पर डिपेंड करता है। अब आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, उनके जो डॉक्टर बता सकता है या वो बता सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग जनरल आइडिया। ये इरेगुलर जो पीरियड्स हैं वो क्यों, कारण क्या है? तो वेट रिड्यूस करना, टू मच वेट रिड्यूस करना, भूखे रहना, और जो ट्रेनिंग है उसकी जो प्लानिंग है आपने ठीक से नहीं की है, वो टाइम में आपको क्या करना चाहिए। तो इस टेबल आप देख सकते हो कि अगर आपके 1 या 2 पीरियड मिस होते हैं लगातार, तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है। तो हो सकता है आपकी डाइट में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपको डाइट चेंज करनी है, डाइट वो बताएगा आपको या बताएगी कि आपको क्या करना है। उसके बाद आता है 3 या 4 आपके लगातार मिस होते हैं, तो आपको मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, गाइनी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। न्यूट्रिशन, इन तीनों का रोल है, और लोड मैनेजमेंट। ये फर्स्ट वाले में जो रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो नॉर्मल ट्रेनिंग है, 1 से 2 पीरियड मिस हो रहे हैं तो नॉर्मल ट्रेनिंग करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब 3 से ज्यादा हो जाता है तो आपको लोड मैनेजमेंट, आपको लोड का ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आपको उसको अल्टर करना पड़ेगा ट्रेनिंग। और जब 6 और मोर पीरियड मिस लगातार 6 महीने तक 6 पीरियड्स आपके मिस हो जाते हैं किसी बच्चे के, तो उस टाइम में मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और आपको ट्रेनिंग है वो स्टॉप करनी पड़ेगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम लड़कियों को ट्रेनिंग कराते हैं तो नॉट ओनली फिजिकल ट्रेनिंग, हमें उनके मेंटल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और उनका जो मेन प्रॉब्लम आता है यही आता है कि आपस में जो विश्वास नहीं है। जब ये चीजें आपको पता है इनके बारे में तो तभी बनेगी जब आपको बहुत अच्छा वो आप पे विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो छुप छुप के आपस में बात करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में, बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या होता है या बाहर क्या होता है, इतने सोशल फ्रीडम है वहाँ बच्चों को, लड़कियों को फ्री फील, मतलब दे कैन एक्सप्रेस एनीथिंग। हमारा जो सोशल सिस्टम है डिफरेंट है, यहाँ पर अभी वो टाइम लगेगा। काफी अभी बोल्ड हो गए हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, दे नो कि क्या करना है। लेकिन स्पेशली अंडर जो जूनियर और सब जूनियर बच्चे हैं इस एज ग्रुप में, उनके लिए हमें बहुत केयर करना है। सो लेफ्ट हियर, और आई थिंक मैं जल्दी खत्म कर रहे, ज्यादा जंप नहीं दिया आज, तो वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। Mr. Fish? Yes, sir. Am I audible? Yeah, because now Yes, you sir. instructed me. So okay, sir. So I request all participants to shoot your questions in the chat box so that sir will be able to answer them. Very much chat box. It will sound well, okay? Yes, sir. Okay, because some are writing. Sir, they might be having some like a network issue from their side, sir. Because for me it was audible, it was clear. Yeah. I think we have some lady coaches there. Sir, there is a question from Mr. Manoj Chaudhary. Sir, he is asking, sir, अगर किसी जूडो का वेट
कम है तो उसको ज्यादा वेट खेलना सही है क्या? मैं पहले ही बताया कि आपका एम क्या है, आप उसको सिर्फ मेडल जीतने के लिए खिला रहे हो या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। एडजस्टमेंट जो है वो अलग बात है, और आप उस एम के लिए आपको वेट अब नेचुरल जो चीज नहीं है उसके मतलब उस वेट कैटेगरी में है ही नहीं, तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? ठीक है, आपने देखा कि ऊपर वाले वेट में 2 ही प्लेयर हैं, उस पर चलो खेलेगा तो 1 या 3 प्लेयर हैं, मेडल आ जाएगा, दैट डिफरेंट थिंग। लेकिन वी आर फोकसिंग ऑन हायर लेवल परफॉर्मेंस, इसकी जो हायर लेवल पे हमने उस बच्चे को लेके जाना है, तो हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। खेलना और नहीं खेलना तो कोई वो नहीं है, खेलते ही है, मैंने बताया ना कि सब कर रहे हैं एडजस्टमेंट, लेकिन आपको प्लेयर किस लेवल का है वो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस्ट। आई थिंक फ्रेश यू रीड योर मैसेज, आई विल रिप्लाई बिकॉज़। सर एक और क्वेश्चन है शमशेर सिंह जी से, वो पूछ रहे हैं सर हाउ टू कंट्रोल वेट फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस टाइम टू नॉर्मल टाइम। सी अभी वो शमशेर सिंह जी ने अपना करना है या प्लेयर का करना है, डिपेंड। सी इफ आपका कैटेगरी हाइट या आपको इसमें हेल्प लेनी है, जो अपने एंथ्रोपोमेट्री के साइंटिस्ट हैं, फिजियोलॉजी वाले, और उसका फैट कितना बढ़ रहा है क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन उसके फिजिक के ऊपर। अब कुछ प्लेयर ग्रोइंग एज में है तो यू कैन नॉट कंट्रोल देयर वेट। आई फॉरगॉट टू टेल दैट कि ग्रोइंग एज में यू नेवर कंट्रोल वेट। जो बच्चे जूनियर हैं, सब जूनियर हैं, उनको अभी भी आप वेट कम के लिए बोलो, लेकिन सीनियर प्लेयर है जैसे लाइक नरेंद्र था, ये ऑलवेज प्लेइंग 60 kg, विजय जी प्लेइंग अप अराउंड, जितने हैं अच्छे प्लेयर हैं वो अपनी उनकी कैटेगरी रहती है, तो उसको चेंज नहीं करते हैं। वो चेंज उनकी होती है जो जूनियर से सीनियर में जा रहे हैं और ग्रोइंग एज में उनकी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती है। देन यू हैव टू सी दैट उनका जो भी पैरामीटर्स हैं आपको टेस्टिंग के वो पता चलता है कि इतनी फैट है, इतनी ग्रोथ है, इतना बोन मास है, हर चीजें कंसीडर करके उसके बाद यू कैन डिसाइड। और मेंटेन करना है तो आपको जो आपकी कैटेगरी है जिसमें आप जब तक खेल रहा है, ट्राई टू मेंटेन दैट कैटेगरी। अगर आपको फैट परसेंटेज वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अननेसेसरली जंप करना नॉट एडवाइजेबल। और बहुत ज्यादा उसको कम करना पड़ता वेट, देन यू कैन ट्राई इन नेक्स्ट कैटेगरी, देन नॉट एडवाइजेबल। जैसे बताया कि अगर आप अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हो और आप अपनी कैटेगरी में जीत नहीं रहे हो, मतलब नीचे खेलने की वजह से, देन इफ यू कैन परफॉर्म बेटर इन हायर कैटेगरी, गो अहेड। Sir, one more question from Mr. Pradeep Kumar Avasthi. He is asking like how and when a judoka can can finalize his weight category. सब कुछ बताया है, जैसे आपको बताया है कि आपका प्रेजेंट वेट कितना, आपको बताया कि स्पोर्ट लीजिए, कोच जो है आपको हेल्प कर सकता है अपने साइंटिस्ट से बात करके, आपका सारे टेस्टिंग वगैरह करके कि आपको कौन सी कैटेगरी सूट करती है, आपके फैट परसेंटेज वगैरह, और दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आप अपने आप में मैच मेक करना है, वो आपको रिकमेंडेशन कोच बताएगा, आपके साइंटिस्ट बताएंगे इस कैटेगरी के लिए फिट है। So then there's one more question from Mr. Sushil Sen. He's asking like sub-junior players में how much weight to be reduced so that there is no harm. No, not advisable. सब जूनियर लेवल पे आप वेट बिल्कुल भी कम करने का मत गाइड करिए उसको, बिल्कुल। पहले बताया कि ग्रोइंग एज में बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे उनके लिए 100 ग्राम कम करना ही बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजिकली वो कुछ खाएंगे नहीं, आप क्या कैसे कराओगे उनका वेट? उनको भूखे रखोगे या बोलोगे कि नहीं आप इतना रनिंग कर लो? आपको बताए तो ये जो आपको पहले फेसिस बताए अपने जुडो के फेस 1 फेस 2 जो बताया है आपने, में आपका एम जीतना नहीं है, आपको उसको एंजॉय कराना है, तो लेट हिम प्ले इन एनी कैटेगरी जहां वो आराम से मजा करे। So there's one question from Mr. Himanshu. Please give light on judoka's training for mental toughness on the mat. It's not a small question. Mental toughness is all depends with experience, और कोच का एक्सपीरियंस प्लस आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है बच्चे को। मेंटल टफनेस एक नेचुरल भी होती है और एक आपको एक्सपोजर से मिलती है। तो this is the only I have answer कि without exposure and without coach mentally tough है, और उसका environment तो उसको जिस environment में करा रहा है under difficult condition, लेकिन that depends
दैट which एज ग्रुप में है वो बच्चा, कितना है, कितना एक्सपोजर मिला है, घर में उसका कैसा है, all these things matter. Mental toughness is not a कि आप उसको जस्ट बोलने से इंजेक्शन लगा देंगे उनके मेंटल टफनेस, जैसे जैसे खेलता जाएगा ट्रेनिंग एज बढ़ती जाएगी और उसका अच्छा अगर एक IQ लेवल और बाकी चीजें अच्छी हैं तो नेचुरली विल बिकम मोर मेंटली टफ. So that's it. There are any more questions? So there's a question from Mr. Najib Aga. No, Najib is there. He's asking, sir, why don't we add more weight categories in children's since it's a growing age? Please recommend to the federation. Yeah, Najib, you can send your Olympian Asian medalist, your legend in Indian judo. You can write, no problem. I think Mr. Jaiswal must be listening in. So no harm. अगर वहाँ ऐड नहीं करते हैं, you can add in your on club जो आप कंपटीशन कराते हो अपने कर्नाटका स्टेट में जहाँ पर भी हो, आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इस स्टेज में मैंने बताया कि जितना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों को एज ग्रुप. अब मैं जब टेल यू कि यूरोप में क्या है, आई वाज हंग्री सरप्राइज, वहाँ जो नेशनल चैंपियनशिप होती है 9 इयर्स की अलग, 10 की अलग, 11th ईयर अप टू 21 इयर्स तक अलग अलग एज ग्रुप की. तो दैट्स वेरी गुड कि उसमें जो मैच्योरिटी लेवल बच्चे का है उतना ही रहता है. एक 9 ईयर का बच्चा 9 ईयर के बच्चे के साथ ही खेलेगा, 10 का 10 के साथ ही खेलेगा. और हमारा जो अभी व्हेन आई केम फ्रॉम देयर आई गिव दिस सजेशन टू फेडरेशन एंड दे अडॉप्टेड दिस, लेकिन उन्होंने अभी भी 2 3 3 4 साल का गैप रखा है. So you can start at your level and you can write to federation and he is listening. जीवन शर्मा जी, हाँ प्लीज. ओके. एक तो आपने काफी अच्छा आपका रहा है, लेकिन आपने एक दो बातें बताई है, जैसे every coach has to approach the scientific approach. ठीक है, अप्रोच होना चाहिए, but most of the coaches actually they don't have the scientific facilities in India. Even in SAI, अभी जैसे आपका नेशनल स्पोर्ट्स साइंसेज सेंटर बेंगलोर में बना है, आपका IAS JSW में है, NCOE भोपाल में है, तो कोच मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कोच ही उनका साइकोलॉजिस्ट होता है, कोच ही फिजियो का काम करता है, कोच को ही डाइटिशियन का काम करता है. और वो थोड़ा सा मोटा मोटा आप इनको बताइए कि एक्सपीरियंस है कि कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग नॉन NIS भी हैं. मेरा मानना है NIS करने से खतरे, लेकिन जैसे गुरु हनुमान थे, कोई NIS नहीं थे, ओम नाम्बियाल नहीं थे, उन्होंने भी एक्सपीरियंस से ही इतना, आप ये देखिए वर्ल्ड चैंपियन तक बनाया गुरु हनुमान ने, वर्ल्ड लेवल के प्लेयर एथलीट, एशियन चैंपियन बनाए. तो प्लेयर कोचेस को थोड़ा सा ये भी मोटिवेट कीजिए आप. तो आप यदि एक मिनट, आप अगर कहेंगे तो लोगों को खुद कोच भी सेल्फ मोटिवेटेड होंगे. मतलब साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ फैसिलिटी नहीं है ग्रास रूट लेवल पर आपके पास NCOE भोपाल में जाने के लिए या JSW में तक जाने के लिए, क्यों डायरेक्टली कोई खेलो इंडिया की अकेडमी या JSW भी जो ग्रास रूट के लेवल के प्लेयर्स को तो रिक्रूट नहीं कर रहे ना, वो एक लेवल पर आने पर कर रहे हैं एक्चुअली. तो जो फीडर सेंटर जो डेवलप हो सके उन कोचेस के लिए भी आप कुछ कहिए, फिर उसके बाद में फिर दोबारा. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा मतलब है. मैं ये बताऊंगा कि जितने भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, देखिए हर जगह पर लेडी डॉक्टर रहती हैं, कोचेस हैं, तो जो मैंने बताया अगर कोचिंग चीजों को फॉलो करे तो उनमें अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं. जहाँ स्पेशल केसेज में, जहाँ जैसे कुछ ही लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, जहाँ कोई स्पेशल केस है, तो आई थिंक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जो भी सेंटर्स हैं जहाँ साइंटिफिक लैब है, पटियाला में है या जहाँ बेंगलोर में है, तो यू कैन राइट दैट प्लेयर्स को लेके वहाँ जा सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेके, ओके उनका को टेस्टिंग करानी है. दैट इज द वन वे. अदर थिंग कि आपके जो पेरेंट्स है, स्पेशली गर्ल्स के मामले में, घर के जो डॉक्टर हैं वो सफिशिएंट है वो, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस हनुमान जी थे या और तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, लेकिन आज के जमाने में आपको यू हैव टू बी, और जहाँ सेंटर्स में नहीं है वहाँ दैट इज द प्रॉब्लम ओनली कि वी नीड लॉट ऑफ साइंटिस्ट एंड लॉट ऑफ साइंटिफिक सपोर्ट, नॉट साइंटिस्ट फॉर नेम से. सपोर्ट चाहिए हमें कोच को, जो कोच चाहता है वो उसको मिलनी चाहिए. अदरवाइज हमारा कोई एम ही नहीं है. वो तो हम जस्ट एक सेंटर चला रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है और हम छोड़ देते हैं. लेकिन गवर्नमेंट को और फेडरेशन को और सभी को मिलकर ये सेंटर अच्छे चल रहे हैं, हमें ये चाहिए. और जिस कोच को कोई प्रॉब्लम होती है उसका प्लेयर का नाम लिख के फेडरेशन को भेजे या साई को भेजे कि ये बच्चा हमारा टैलेंटेड है, इसकी हमने टेस्टिंग करानी है, प्लीज एडवाइस. और यू कैन इनवाइट दैट साइंटिस्ट फ्रॉम देयर. आई डोंट थिंक anybody will refuse to send scientists or anybody to conduct tests or advise them. Thank you. Okay, sir.
Sir, last 6 minutes, sir. So, if anyone wants to ask some questions, you can please go ahead. So, I think it's a very Okay, difficult. sir, once again reiterate, like all the Sai coaches, please mark your attendance by mentioning your Sai center. By mentioning your Sai center name. All the Sai coaches, please. If you're already done, no need to do it again. But those who have not done, please write it properly by mentioning your Sai center name also. Mr. Rishikesh is asking that periodization really possible in India? So, this is the only problem now. I have explained number. It's not a issue कि periodization possible क्यों नहीं है? Possible है, लेकिन we should have professional approach. अगर हमारे को professional approach नहीं है, right person नहीं है periodization करने के लिए या calendar बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो possibility तो हर चीज की है. जैसे scientist कितने हमें चाहिए, सब चीजें चाहिए. कुछ ऐसे नहीं है जो possible नहीं है. Any lady coach is there, if they want to speak something on behalf of that, they are welcome because we have 4-5 minutes. कोई भी lady coach हमारे अगर बैठे हैं, कोई point रह गया हो या they want to tell what problem they are facing, they are most welcome. Sunit Thakur is there, I think Garima is there, or so many Olympians are there. Poonam, I think is there, I don't know. So anybody can come and tell. This is good. Or which players जो होंगे, they can come up and tell their problems, what they need. Or coaches, any coach even. So I think. Sir, एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, like everyone please utilize the sports science sessions. Really good sessions are happening. Like so you can join at 5 o'clock for the sports science sessions. I'm also posting the sports science sessions in the groups also, the slides. But then too, it'll be really a good session if you can attend to. So please, I would request everyone to attend the sports science session also. So there is one question that sexual harassment. So already we covered sexual harassment. तो पहले जो मैंने slide दिखाई थी वही दिखाया था. Due to sexual harassment only, सुषमा जी बता रहे हैं. So that is a very common, वो हमें को handle करना ही है. और one thing I just want to, I think we have 2 minutes. I just forgot. Yes, sir. हमारे जो 3 more minutes. We have 2 minutes. We have ना. Yes, sir. So I want to tell कि जो हमारे जो coaches हैं, उनमें जो infinity complex है कि like we use that, like you telling what session scientific चल रहे हैं कि we use so much technical language, तो हमारे coaches के दिमाग में पड़ता नहीं है कि what terms they are using. तो book से लेके ये जितना simple language में होगा उतने हमारे coaches ज़्यादा समझेंगे. And that is the problem. And I will give you my example. When I was doing my NIS in 1984 and I came to Bangalore, और वो टाइम में वहाँ का सिलेबस और स्ट्रेंथ कंडीशनिंग और कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि साइंटिस्ट बहुत कम थे और दे यूज्ड टू यूज बिग साइंटिफिक वर्ड. एंड पर्सन लाइक मी और जो एकदम गांव से आते हैं और जब तक इंग्लिश ही स्टैंडर्ड से शुरू होता है तो पता नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं. ऐसे अबाउट 75% केसेस आर लाइक दैट ओनली. तो आई रिमेंबर देयर वाज वन doctor you are doing MBBS, it's named by Prashant in our Bangalore Judo Club. So I was explaining about aerobic and anaerobic. तो aerobic के बारे में जो मेरे को पता था वो कुछ मैंने गलत बता दिया और उन्होंने साथ aerobic ये होता है, क्योंकि हमें कई चीजों का सिर्फ टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अरे ये बताया आपने क्या है वो क्या है. तो इसलिए मैंने जो अपने सेशन रखे हैं इतना मतलब ट्राई किया कि उसको कम से कम ऐसे वर्ड्स यूज किया जाए जो वो चीज के समझ में नहीं आए. और वहां पर जब हम डिप्लोमा करते हैं तो इतना मिक्सअप हो जाता है और जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है या थोड़ा साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है. तो ऑल कोचेस शुड इफ दे कर रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट. अब तो बहुत है कि आप यू कैन सी इन YouTube एंड यू कैन सी ऑन नेट की इसका मीनिंग क्या है, देन यू विल एंजॉय दैट सेशन. डोंट गो कि ये बहुत ज्यादा हायर लेवल का था लोअर लेवल का था या हमें समझ नहीं आया. तो दिस इज द प्रॉब्लम. थैंक यू. जयसवाल सर. हाँ जी. हाँ. थैंक यू एवरीवन.
मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इज आस्किंग टू सबमिट द प्लान फॉर 24 and 28. Here almost of the coaches they have joined in the group, so I'm requesting all of them to please send your suggestions for 24 and 28 so we can include in the plan. जिससे बाद में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं कि भाई इसमें अगर ये होता तो और अच्छा होता, तो हम और अच्छी तरीके से आपके पास भी समय है, आप लॉकडाउन के में है, आपके पास काफी समय, आपके कोचिंग से उन सभी से आपको अभी उतना टाइम इम्पार्ट नहीं करना, घर पर है, तो आप ये सजेशंस JFI इंडिया जो मैंने अभी चैट बॉक्स में भेजा है उसकी मेल बॉक्स पर और मेरे पर्सनल मेल बॉक्स पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो हम उसको जो अभी जो नेक्स्ट मीटिंग होगा, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग होने वाला है, सबमिट करना है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को 2024 और 28 के लिए, वो आप मुझे जल्द से जल्द भेजें, जिससे मैं उसको अपना यहाँ हमारी जो टेक्निकल काउंसिल और प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल लेकर उसको आगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री को हम उसको प्रोग्राम को सबमिट कर सकें। Thank you. Okay, sir. So thank you, sir. So I think it's 11:30, sir. We have to end the session because we have another badminton session going to happen, sir, at 12. So I request everyone to come back tomorrow at the same time, 10:30, and tomorrow's lecture will be given by Mr. Yashpal Solanki. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, sir.